સ્મોલ વન્ડર પ્લેહાઉસ દ્વારા સામાજિક પ્રવૃત્તિના ભાગરૂપે વુમન ડે નિમિત્તે ડિજિટલ ઓલ શીર્ષક તળે એક અનોખા કાર્યક્રમનું આયોજન મેઘાણી મિની હોલ ખાતે કરાયું હતું. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત પાવર ટોક, વુમન એન્ડ ફાઇનાન્સ લિટરેસી અને ગેમ્સનું આયોજન કરાયું હતું. શ્રી બ્રિજેશ્વરી કુમારીના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં વન્ડર વુમન ગ્રુપના શ્રી શિલ્પા દુવેરા, ટ્વિંકલ બંસલ, સુગંધ ગુપ્તા, નિરાલી વસાણી, અહીના ચોથાણી, નિધિ વસાણી, દર્શના મહેતા, ચિત્રા ભંડારી અને અંબિકા ટેકરીવાલ જોડાયા હતા અને સ્ત્રી શક્તિનો પરિચય કરાવ્યો હતો. કાર્યક્રમ અંગેની માહિતી શ્રીમતી હર્ષાબેન રામૈયાએ આપી હતી. નમસ્તે, મારું નામ હર્ષા રામૈયા છે અને દર વર્ષે અમે લોકો વિશ્વ વુમન્સ ડે, જે ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે છે, એ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. આ વર્ષની થીમ બહુ જ સરસ છે, ડિજિટ ઓલ. મતલબ કે હવે બધું જ ડિજિટલાઇઝેશન ઉપર જતું રહ્યું છે, તો એમાં જેન્ડર ઇનઇક્વાલિટીનો તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. એટલે એ થીમ ઉપર અમે આજે બહુ જ સરસ સેલિબ્રેશન કરી રહ્યા છે. ભાવનગરના જે કુંવરી સાહેબા છે, બ્રિજેશ્વરી કુમારી, એ અમારા આજના ચીફ ગેસ્ટ છે. અને આજના પ્રોગ્રામમાં અમે લોકો ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી એનું અમે લોકો નોલેજ આપવાના છીએ કે લેડીઝ પણ ફાઇનાન્સને કઈ રીતે મેનેજ કરી શકે. કેમ કે જનરલી એવું હોય કે LIC પોલિસીઝ છે, બેંક છે, કે લેવડ દેવડ જે પૈસાની હોય, જનરલી ઘરના મેલ્સ જ મેનેજ કરતા હોય. પણ કોરોના દરમિયાન ઘણીવાર એવું થયું છે કે ઘરના મેલ મેમ્બર જે છે એ પાસ થઈ ગયા હોય, તો લેડીઝને કશી જ ખબર ના હોય. તો ઇનર વ્હીલ સાથે અમે લોકો એક બહુ જ સરસ પ્રોજેક્ટ કર્યો છે, જેમાં એક ફાઇલ આજે દરેક અટેન્ડીને આપવામાં આવવાની છે કે જેની અંદર એ લોકો બધું ડોક્યુમેન્ટેશન રાખી શકે કે LIC પોલિસી ક્યારે પાકે છે, એના કઈ રીતની એની સિસ્ટમ છે, બેંકમાં કેટલા પૈસા છે, કોની સાથે શું ટ્રાન્ઝેક્શન છે, બધી વસ્તુ બહુ જ સરસ રીતે કરેલી છે. ફક્ત એ લોકો એની અંદર એન્ટ્રી જ કરવાની છે. એક ઈ પ્રોજેક્ટ છે. બીજું વુમન ઓફ સબસ્ટન્સ. આ વખતે અમે 3 લેડીઝને સન્માનિત કરી રહ્યા છે કે જે લોકોની લાઈફમાં મેલ્સ ના હોય, હસબન્ડ યા તો ડિવોર્સ થઈ ગયા હોય યા તો ગુજરી ગયા હોય, માતા પિતાનો પણ સપોર્ટ ન હોય કે ન સાસરિયા પક્ષથી કોઈ સપોર્ટ હોય, કોઈ પણ સપોર્ટ વગર બાળકોને મોટા કર્યા હોય અને બહુ જ સ્ટ્રગલ કરી હોય, એવી 3 સરસ લેડીઝને અમે અહીંયા સન્માનિત કરીએ છીએ. કેમ કે આવી સ્ટોરીઝ જ બીજા લેડીઝને ઇન્સ્પાયર કરી શકે. અને એ તબક્કે હું ભાવનગરનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે બહુ જ સરસ અમને પ્રતિસાદ દર વર્ષે મળે છે અને આ વર્ષે પણ મળ્યો છે. થેન્ક યુ. Experiences or has experienced similar things. But I think the main thing here is that this year's Women's Day theme I found very interesting because it's called Digit All, which means to have digital access. A lot of households in our Indian economy and a lot of households in India only had access to one phone or maximum 2 phones, and you have an average of 2 or 3 children per family. Young girls really suffered, and I think that is where the sort of right to privilege or the right to, like, you know, I guess asking for your rights begins, because you're too young to really ask for your rights at that point. At least here as women here today, we have the privilege to really ask for what we want, but at that point you don't. So I think in terms of like Digit All and Women's Day, I do hope that we can first make digital all and digital access accessible digitally to young girls and to youngsters to begin with, so that they have the access to educate themselves, to research, to learn and study and grow, and then become the women that, you know, mold society onwards. So thank you. Srimati Brigeshwari Kumari Gohil, Kuvri Sahiba of Bhavnagar, who is a reputed curator and conservator of Bhavnagar heritage. As also I welcome Dr. Nidhi Vasani. Okay, International Women's Day is no longer a new topic, and it is celebrated across the world in order to recognize and appreciate the contributions and achievements of women in various fields. Therefore, this celebration is organized to give recognition to such personalities. दिन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिएगा. कोई है? मैं, मम्मी का मन में है. वाह, क्या माफ कीजिएगा, आज मैं ये नहीं कहूंगी नारी तू शक्ति, नारी तू दुर्गा. बिल्कुल नहीं. मेरे हिसाब से तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी. मैं एक बहुत ही बड़े परिवार की बहू हूँ, बहुत बड़े परिवार की बेटी हूँ, बहुत सारी सोशल एक्टिविटी से जुड़ी हुई हूँ, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है. मेरी ऑडी मर्सिडीज वाली फ्रेंड्स भी है, फैमिली भी है,
एक मध्यम परिवार वाली, खाते पीते परिवार वाली भी फ्रेंड्स है, फैमिली है, और सर्विस क्लास वाले भी फैमिली की जो लेडीज़ है वो मेरी फ्रेंड्स है। जब मैं उनके साथ उठती हूँ, बैठती हूँ, तो जैसे जी करा जाता है। अभी अविका ने बोला कि वो जब बातें करती है, क्या है, गाड़ी मोटर बंगला सब तो दे रखा है, सारा दिन गद्दा ही तोड़ती रहती हो, महीना शुरू हुआ नहीं मांगने खड़ी हो जाती हो, पैसे क्या पेड़ से लगे हुए हैं? तो क्या करें? आप सोचिए, जो महिलाएं सक्षम हैं, जो महिलाएं एजुकेटेड है, जो महिलाएं टैलेंटेड है, जब उनको हर दिन ये बात जब सुननी पड़ती है तो एक आप अपने आत्मसम्मान को कैसे बचा, हर दिन आप मतलब रात को आप सो भी नहीं पाते हो कि कल क्या होगा, कल क्या बात सुनने में आएगी। तो हम पंचिंग बैग नहीं है, हमारी चमड़ी मोटी नहीं है, दिल हमारे में भी है, हमको भी दुखता है, लेकिन ठीक है, अब क्या करें फिर? तो क्या क्या करना है? अब जैसे बोलती हैं कुछ महिलाएं, बोलती है कि मैं सक्षम हूँ, मुझे सर्विस करने दोगे? तो तुम 5-10 हज़ार की नौकरी में क्या उखाड़ लोगी? मुझे एक छोटा सा बिजनेस करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? घर परिवार की मान मर्यादा नहीं है, लोग क्या बोलेंगे? तो भाई यार, तो बड़ा बिजनेस करा के दे दे, तो पैसे इन्वेस्टमेंट कर दे, मैं बड़ा कर लूंगी। अरे पैसे क्या डुबोने के लिए रखे हुए हैं? तो भाई क्या करें? अरे क्या क्या करना है? निकलो, अपने घर से निकलो और अपनी बुद्धि, अपने टैलेंट और अपने एजुकेशन के ऊपर जो आपके ऊपर जो एक परत जमी हुई है उसको निकालो, उसको पहुंचो। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्या है, थोड़े दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा आसमान आपका है। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जब तक महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तब तक ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। मैं दूसरों को क्या, मैं खुद का एग्जाम्पल देती हूँ, कभी ना कभी इसी नाव में सवार थी। आज जब मैं पैसे कमाती हूँ, मैं जिसको मर्जी डोनेट करती हूँ, जो मर्जी करती हूँ, जो मर्जी शॉपिंग करती हूँ, मुझे किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, 24 घंटे का होम मेकर का जॉब लेके आप कितने कितने बड़े मेडल हासिल कर लिए? कुछ नहीं, कंप्लेन की बड़ी से बड़ी लिस्ट, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और उसमें आपकी कोई खुशी नहीं है। आपको पता ही नहीं आपकी खुशी क्या है, तो फिर क्यों गधा मजदूरी कर रहे हैं? हम निकले ना, हम कोशिश करें। हाँ, और हम औरतें इतनी सक्षम हैं कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे मन का एक डर है। इस डर को जिस दिन हम निकाल के फेंकेंगे उस दिन हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके लिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। सबके साथ बैठती हूँ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ऐसे लगता है घुटती है, तड़पती है, रोती है जिंदगी, घुटती है, तड़पती है, रोती है जिंदगी, हैरत है फिर भी किस तरह जीती है जिंदगी। भूख मिटाती है वो अपना जिस्म बेचकर, अंदाज लगा लो कितनी सस्ती है जिंदगी। यहाँ जिंदगी मतलब एक औरत, सुबह से शाम तक बहाती वो खून पसीना, क्योंकि ये मेरे पति की पसंद, ये मेरे बेटे की पसंद, ये मेरी सास की पसंद। अरे तुम्हारी पसंद कहाँ है? कुछ नहीं। सुबह से शाम तक बहाती वो खून पसीना, फिर भी एक पसंद की रोटी को तरसती है जिंदगी, हैरत है फिर भी किस तरह जीती है जिंदगी। डर लगने लगा है आने वाली बहारों से। भारतवर्ष तो त्योहारों का देश है, कभी दिवाली आई, कभी होली आई, कभी किसी की शादी, कभी किसी का कुछ, तो खर्चा तो बढ़ेगा, फिर हाथ फैलाना, फिर बेइज्जत होना। तो डर लगने लगा है आने वाली बहारों से, सावन के महीने में भी तरसती है जिंदगी, हैरत है फिर भी किस तरह जीती है जिंदगी। ऐ दिल बता जहाँ कुछ सुकून मिले,
ऐ दिल बता जहाँ कुछ सुकून मिले, यहाँ तो कदम कदम पर लुटती है जिंदगी। अपने ही घर में अजनबी हो गई है आज। ये मेरे पिताजी का घर, ये मेरे पति का घर, ये मेरे बेटे का घर, तो तुम्हारा घर कौन सा? अरे आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपका कोई घर नहीं है। अपने ही घर में अजनबी हो गई है आज, लावारिस बनी सड़कों पे भटकती है जिंदगी। हैरत है फिर भी किस तरह जीती है जिंदगी। आज हम लोग सब मिलके एक शपथ लेते हैं कि हम अपने आप को भी सक्षम बनाएंगे और हमारे आसपास की महिलाओं को भी सक्षम बनाएंगे। आज हमारे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, हमारे एजुकेशन की फील्ड के बहुत महारथी हैं और बिजनेस फील्ड के भी कुछ लोग हैं। तो मैं आपको कहती हूँ कि अगर हम दो लोगों को भी थोड़ा पुशअप करके अगर हम उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सके तो यही सबसे बड़ा महिला दिवस का सबसे बड़ा उपहार होगा। और मैं महिलाओं से कहती हूँ कि अपने अंदर का जो एक डर है, क्या होगा अगर मैं घर से बाहर निकली तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे तो आसान तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। आसान तो भगवान राम की जिंदगी भी नहीं थी। तो तुम्हें पहला कदम तो खुद बढ़ाना पड़ेगा, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए आप अपनी शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। तो खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए उदास है? तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। थैंक यू। पर खाना मतलब खाना बनाना टफ है, पर किसके लिए खाना बनाना टफ है? ऐसे अपने लिए शायद कभी इजी लगता है, सबके लिए है ना। खुद के लिए शायद इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि सबका बना के फिर अपने आप के लिए कुछ करना मुश्किल लगता है। बट coming to what I have come here for, out of the different aspects of a woman's existence, the most rewarding, although the toughest one, is that one of a motherhood. Motherhood, जब हम मम्मी का बनने का सोचते हैं तो हमें सिर्फ कडली बेबीज, ऐसे बहुत सॉफ्ट मोटे मोटे वाइट फरी बेबीज ही दिखते हैं, पर उसके साथ क्या आता है? इटका सही में दिखते हैं। मैं तो रोज देखती हूँ, मैम को पूछ लो, निधि मैम को। When we think about मम्मी बनना है, प्रेगनेंसी है, पेट पे हाथ जाता है, तब हम इमेजिन वही करते हैं। बट विद दैट मदरहुड कम्स स्लीप डिप्राइवेशन। कब दिन हुआ, कब रात हुई, पता ही नहीं चला।